پی ٹی آئی کے مزید 35 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی کے جن اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں جنید اکبر، عثمان ترکئی، مجاہد علی، ارباب عامر ایوب، اندلیب عباس، ملائکہ بخاری کے نام شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی کے استعفے موصول ہو چکے ہیں۔ کارروائی کے بعد جلد اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اسپیکر کا نام غیر قانونی اور قابل مذمت ہے، حکومت کو گھر بھیجنا ملکی مفاد میں ہے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں اسمبلی میں بلوایا تھا۔ اسپیکر نے کہا تھا میں ایسے استعفے منظور نہیں کر سکتا، کیا جن کے استعفے منظور کیے گئے انہیں اسپیکر نے بلایا تھا؟ یہ غیر قانونی ہے، جمہوریت کے نام پر مذاق ہے۔ کوئی بھی ملک چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، ایسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون درکار ہوتا ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر سیشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے ایشیائی ممالک بالخصوص ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں، تیسری دنیا کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات نہ کرائے گئے تو پاکستان کی معیشت سری لنکا کی طرح دیوالیے پن کا شکار ہو جائے گی۔ جان کو خطرہ ہے مگر چھپ کر بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انتخابات کا سال ہے، انتخابی مہم چلائیں گے، ہر صورت عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بنایا گیا وزیر اعلیٰ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بنایا گیا وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے، ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کے خلاف عدالت جائیں گے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی نیت اور سوچ کا پتہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی، پولیس کو گرفتاری سے روک دیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے معاملے پر ڈی سی آفس کے واڑی میں ڈی آر او کے دفتر میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں نامزد علی زیدی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ وزارت خارجہ قانونی محاذ پر فوزیہ صدیقی کو سہولت فراہم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکہ سے رہائی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز 27 جنوری کو لندن سے پاکستان روانہ ہوں گی۔ مریم نواز کے ہمراہ خاندان کے چند افراد اور پارٹی کارکن بھی پاکستان جائیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز پاکستان پہنچ کر سیاست میں بھرپور حصہ لیں گی۔ روس سے سستا تیل اور ایل این جی خریداری کا معاملہ پاک روس بین الحکومتی کمیشن کے درمیان آخری روز کا وزارتی سطح کا اجلاس شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کی صدارت وفاقی وزیر اقتصادی امور ایاز صادق، جبکہ روس کے وفد کی نمائندگی روس کے وزیر توانائی کر رہے ہیں۔
बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम की आमद नया सिलसिला 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के बायस पड़ने वाली बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। अफगानिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस 78 अफराद जाँ बहक। हुकाम का कहना है कि रवा बरस सर्दी की शिद्दत ने गुज़श्ता दहाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि आइंदा हफ्तों में दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3627 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.58% रिपोर्ट की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस के लिए अमेरिका के 3 शहरों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स और ऑकलैंड को मैचेस कराने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान और भारत का T20 वर्ल्ड कप का मैच अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में कराए जाने का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI के जिन अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, उनमें जुनैद अकबर, उस्मान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, अंदलेब अब्बास, मलिका बुखारी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहबजादा सबकतुल्लाह, महबूब शाह और मोहम्मद बशीर के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। फहरिस्त में खुसरो बख्तियार और आमिर कयानी के साथ साथ फखर इमाम और करामत खोकर, शेर अकबर खान, अली खान जदून, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, सैयद फैजादुल हसन, शौकत अली भट्टी भी शामिल है। उमर असलम खान, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्ला, महबूब हुसैन कुरैशी, इब्राहिम खान, तारिक इकबाल, औरंगजेब खान कच्छी, अब्दुल मजीद खान, अस्मा कदीर, मुनव्वर बीबी बलोच के भी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को PTI के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंसूर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जल्द अरकान को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि स्पीकर का इकदाम गैर कानूनी और काबिल मुजम्मत है। हुकूमत को घर भेजना मुल्की मफाद में है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने हमें असम्बली में बुलवाया था। स्पीकर ने कहा था कि मैं ऐसे इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। क्या जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए इन्हें स्पीकर ने बुलाया था? ये गैर कानूनी है, जमहूरियत के नाम पर मजाक है। उनका मजीद कहना था, हम चाहते थे कि हमारे जो MNAs हैं वो असम्बली जाएं। हम अंदर गए, वहाँ स्पीकर हैं, ना डिप्टी स्पीकर, और सेक्रेटरी हैं, ना ही डिप्टी सेक्रेटरी।
पूरा अमला गायब है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का कहना था कि मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही के दलदल में धंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाएगा। इस मौका पर फवाद चौधरी ने कहा, हम एक मजबूर लाचार पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। स्पीकर कहते थे कि 17 से 18 लोग उनसे राब्ते में हैं। स्पीकर से पूछता हूं कि वो 17 से 18 लोग कहां हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज स्पीकर ने अपने अमल से साबित किया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, जबकि स्पीकर ने मेरे खत के जवाब में कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। हमने इजलास में शिरकत का फैसला किया, उन्होंने इजलास मुअख्खर कर दिया। हमने असेंबली में आने का फैसला किया, उन्होंने मजीद 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जो बाकी रह गए थे हम उनको भी असेंबली ले आए। आपने हमारे 81 अरकान को डिनोटिफाई किया, हम बाकियों को लाए थे, इनके इस्तीफे भी मंजूर करें। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के मामले पर डीसी ऑफिस कमारी में DRO के दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा लाई के इल्जाम में नामजद अली जैदी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और जमानत की दरख्वास्त दायर की। इस हवाले से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त जमानत 30,000 रुपए के मुचलके के एवज मंजूर करते हुए पुलिस को मुल्जिमान को 28 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI के बिलाल गफार, सईद अफरीदी और दीगर पहले ही मुकदमे में जमानत हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता है। कल हाफिज नईमुर रहमान हमारे पास आ रहे हैं, उनसे मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत आफिया सदीकी की रिहाई के लिए कुछ करना नहीं चाहती। वजारत खारजा कानूनी महाज पर फौजिया सदीकी को सहूलत फराहम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की अमरीका से रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज एहसाफ खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। डॉक्टर फौजिया सदीकी अपने वकील के हमरा अदालत के सामने पेश हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि केस के हवाले से क्या पेशरफ्त है। मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि कायम मुकाम अमरीकी सफीर से हमारे ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई। जस्टिस सरदार एजाज एहसाफ खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या काफी और केक की मीटिंग हुई थी, कोई आइडिया नहीं इस मुलाकात में क्या हुआ था। 7वीं 8वीं समात है, हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं करना चाहती। हमारा भी एक दायरा इख्तियार है, इसकी हद तक ही रह सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि आफिया सदीकी की रिहाई का मामला सफारती सतह पर उठाया गया है। अदालत ने वजारत खारजा को कानूनी महाज पर फौजिया सदीकी को सहूलत फराहम करने की हिदायत करते हुए वजारत खारजा हुकाम को आइंदा हफ्ते फौजिया सदीकी के साथ मीटिंग करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सदीकी की अमरीका से रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना कराए गए तो पाकिस्तान की मुईशत श्रीलंका की तरह दिवालियेपन का शिकार हो जाएगी। गैर मुल्की नशराती इदारे BBC को इंटरव्यू में देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, जान को खतरा है मगर चुपकर नहीं बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात का साल है, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, हर सूरत अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। अवामी रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने का भी फैसला किया गया है। चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत और इसके साथ इत्तेहादी चाहते हैं मुझे किसी तरह से नाअहल करार दे दिया जाए। नाअहली के लिए मुखालिफिन अपनी तमाम कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं जहां इन्हें नाअहल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतना सियासी अदम इस्तेकाम है कि मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन हो चुका है, जबकि दूसरा बड़ा खतरा बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी से है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता।
दूसरी तरफ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई भी मुल्क चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। इसे चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन दरकार होता है। डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेशन के दौरान खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से एशियाई ममालिक बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। तीसरी दुनिया की मुआशरत वबा का शिकार है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुल्क चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। इसे चैलेंजेस से निपटने के लिए दीगर ममालिक का ताउन दरकार होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। उनके नामजद वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली ने निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी नोटिफाई कर दी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी को भेजने के लिए अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम फाइनल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से होचीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने आए हैं। पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जिसके पास फैसले के लिए 2 दिन होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लंदन से पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तय पा गया है। नून लीग की सीनियर नायब सदर 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस आएंगी। नून लीगी जराये के मुताबिक मरियम नवाज गैर मुल्की एयरलाइन से 28 जनवरी को हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होंगी और 29 जनवरी बरोज इतवार शाम 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी। जबकि उनके हमरा फैमिली के चंद अफराद भी लाहौर पहुंचेंगे। मरियम नवाज लंदन में 4 माह तक कयाम के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर होने के बाद वतन वापसी पर वो सियासी तौर पर मुतहदिक नजर आएंगी। रुक करते हैं सिंध हाई कोर्ट का। आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस नेमतुल्लाह ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा, जिस इलाके से शहरी लापता हो मुतलका थाने में फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने SHO शाह लतीफ को हुक्म दिया कि लापता शहरी मीर अली हैदर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी हैदर अली को फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि लापता शहरी मंजूर अहमद घर वापस आ गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था, गुमशुदगी के दौरान मंजूर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अदालत ने स्टील टाउन से लापता होने वाले शहरी मंजूर अहमद की गुमशुदगी की दरख्वास्त निपटा दी। रूस से सस्ता तेल और LNG खरीदारी के मामले पर पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के दौरान आखिरी रोज के वजारती सतह का इजलास शुरू हो गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वफद की सदारत वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर अयाज सादिक कर रहे हैं, जबकि रूस के वफद की नुमाइंदगी रूस के वजीर तवानाई कर रहे हैं। जराये का कहना है कि इजलास में बाहमी तजारत, सरमाया, तवानाई, तालीम, रोड्स, रेलवे और मालियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। आज के इजलास के एजेंडे में स्ट्रीम गैस पाइपलाइन तामीर के मामले का खुसूसी तौर पर शुमार किया गया है। जराये का यह भी कहना है कि वजारत इजलास में रूस से सस्ते निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ के पैलेटलेट्स कभी नीचे कभी ऊपर हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और नवाज शरीफ के पैलेटलेट्स एक ही जैसे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ यहाँ क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हाथों 13 जमातों का जनाजा निकल जाएगा। नून लीग की जो इज्तिमाई कब्र बन रही है, इसमें नवाज शरीफ कुल पड़ाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में 42 हल्के ऐसे हैं जिनका फैसला कुन वोट ओवरसीज के पास है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की होगी।
बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम की आमद। नया सिलसिला 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं की बाइस बनने वाली बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी है। नया निजाम बलूचिस्तान के रास्ते 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते की शाम तक मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। नए निजाम के तहत मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ नया निजाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि यह सिलसिला वक्फे वक्फे से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। इस दौरान तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है, जिस दौरान चंद एक इलाकों में यालाबारी भी मुमकिन है। सूरत हाल के पेश नजर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी। अलबत्ता ये बारिशें फसलों के लिए मुफीद साबित होंगी। ओकारा शहर और गिरदनवाह में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल होकर रह गया है। बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के पेश नजर गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस घरेलू सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि चमन में कोसोब टॉप पर तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलोचिस्तान के मौसमी असरात जुमा से कराची और साहिली इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। रिकॉर्ड सर्दी भी मतवक्के है। लेविस कंट्रोल ने बर्फ साफ करने और नमक पाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि कोसिक टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि तूफान की शिद्दत देखकर कोसिक टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कान, महतजरई, मुस्लिम बाग, हानूजई और में भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। चमन शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के सबब नदी नाले ज़ेरे आब आ सकते हैं। पीटीएम का कहना है कि शुमाली बलोचिस्तान के मौसमी असरात जुमा से कराची और साहली इलाकों पर असर अंदाज होने के इम्कानात हैं। और अब कुछ बात अमेरिकी डॉलर की। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर इंटरबैंक में 229 रुपए से तजावुज कर गया। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमेरिकी डॉलर के कदर में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नए साल के दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। दरामदात रोकने से ज़र मुबादला ज़खायर की गिरावट रुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 13 जनवरी तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब 44 करोड़ डॉलर रहे। जनवरी के दूसरे हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 25 करोड़ 58 लाख डॉलर बढ़े। अब आपको बताएं कि बहावल नगर में महंगाई के खिलाफ वापडा मुलाजमीन ने एक एहतजाजी रैली निकाली। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त चेयरमैन वापडा के पास मौजूद हैं। जी शहबाज प्रिंस, आगाह कीजिएगा। बहावल नगर मिंचनाबाद चौक में यहाँ पर वापडा मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो निजीकारी की जा रही है इसके खिलाफ हम धरना देके बैठेंगे और इनके हम बात करेंगे। वापडा चेयरमैन से ये क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि ये IMF का एजेंडा, ये पहली भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी ये पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उन्होंने फिर ये अपना काम फिर शुरू कर दिया IMF का एजेंडा पूरा करने के लिए। तो हम मजदूरों के इत्तेहाद से ये बावर कराना चाहते हैं कि अभी तो हम इधर चौक में आए हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात ये ना मानी तो हम गली गली कूचा कूचा करिया करिया ये बात उनको करनी पड़ेगी कि IMF का एजेंडा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये मजदूर ये मुल्क चलाते हैं, ये महकमा हमारा पूरे मुल्क को रोशन करता है। अगर उन्हें अगर बाज ना आए तो हम पूरे मुल्क की बिजली भी बंद करेंगे, चौराहे भी बंद करेंगे, चौक भी बंद करेंगे और उनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे वापडा चेयरमैन का कहना है कि जो IMF की जानिब से ये जो एजेंडा इन्होंने हम पे लागू किया है, हम बोर्ड हुकूमत की तरफ से ये जो निजी कारी का जो इन्होंने काम शुरू किया है ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। निजी कारी से हमारे जो मजदूर तबके जो है माशी कत्ल है, लिहाजा हम ये बिल्कुल कबूल। और अब बात करते हैं आटे के बहरान की। आपको बताएं ऊज शरीफ में सरकारी आटे की तरसील का अमल जारी है।
महकमा फूड का कहना है कि आटा सरकारी रेट पर दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खालिद सुलेमान से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। भावलपुर की सब तहसील और शरीफ आटा सेल पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुबह 6 बजे से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि हम शदीद परेशान हैं और हम लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। शाम को जो है खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। दूसरी जानब इंतजामिया की बात करें तो उनका यही कहना है कि हम भी शदीद परेशान हैं। लोग एक दूसरे को बड़ी तादाद में होते हैं तो धक्के अंदाजी करते हैं। हमारे साथ लतीफ़ अहमद फूड इंस्पेक्टर और इंचार्ज और शरीफ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि यहाँ पर कितनी तादाद में आता होता है और कितने लोगों को दिया जाता है? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ और शरीफ रेस्ट हाउस में सेल पॉइंट पर 1700 बैग्स हैं 10 किलो के, और 1700 बैग्स जहाँ होंगे वहाँ साफ ज़ाहिर आदमी और आवाम का रश तो होगा। और 1700 बैग को तकसीम करने के लिए हमने बेहतरीन सिस्टम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइनें लगी हुई हैं और हमने 5 पॉइंट खोले हुए हैं। 4 पॉइंट हैं हमारे मर्दों में और 1 पॉइंट हमारा खोला हुआ है लेडीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सेल पॉइंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और किसी किस्म का बहरान भी नहीं है। ये लोगों ने जो माफिया है ना, जो एक आदमी आता है और 4 बंदों को लेकर आता है अपने साथ मोटरसाइकिलों पे, रक्शों पे, वो उनको इकट्ठा ले जाते हैं और वो बाजार में जाकर उसको सेल कर रहे हैं। सर, लोगों का ये भी कहना है कि हम आते तो हैं लेकिन हर फर्द को आटा नहीं दिया जाता। आने वाले दिनों में आपका क्या इज़हार ख्याल है कि आप आटे की तादाद बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? नहीं, ये तो हमारे महकमे की पॉलिसी है। जैसे हमारे महकमे की पॉलिसी होगी पंजाब गवर्नमेंट के तहत, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डीडी साहब हैं, हमारे अदनान बदर साहब, और हमारे DFC साहब हैं फरूख शाहजाद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से बहावलपुर को उन्होंने कवरेज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी किस्म का बहावलपुर में हमारे में चूनिया में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की ज़मीन पर बाअसर अफराद का कब्जा। शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से कि इंतज़ामिया कार्रवाई से गुरेजा हैं? मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा। जी, हम इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मौजूद हैं। मेरी पिछली जानिब आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और ये जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त ये भी हॉस्पिटल का रकबा है। हॉस्पिटल की सरकारी ज़मीन है जिसे असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने गैर सरकारी अफराद से साजबाज होकर यहाँ पे दीवारें करवा दी हैं, दरवाजे लगवा दिए हैं और नाजायज़ कब्जा करवा दिया है। हमारी जो है हमारे ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई है कि इस नाजायज़ कब्जे में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मुलव्वस है और इस अस्पताल की सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे पर साबिक MS जो है THQ हॉस्पिटल चूनिया के वो राय बिलाल बिन मुनीर वो रुकावट थे, तो उनका जो है वो यहाँ से तबादला करवा दिया है। ये मेरी आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये तकरीबन जो है 12 मरले से जायद का रकबा है जिस पर जो है वो दीवारें करवाकर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने इस सरकारी ज़मीन को अस्पताल से नाजायज़ काबजीन से साजबाज होकर अलग करवा दिया है। इस शहर की जो है वो आबादी बढ़ने के साथ शहरियों के लिए सेहत की सहूलियात बढ़ाने के लिए अस्पताल का मौजूदा रकबा जो है वो भी कम पड़ सकता है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जिनकी जिम्मेदारी है इस सरकारी रकबे समेत, इस सरकारी जगह समेत तहसील चूनिया की तमाम सरकारी रकबाजात का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो गैर सरकारी अफराद से साजबाज होकर इस अस्पताल की सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करवाने में मुलव्वस हैं। शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, वज़ीर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, गवर्नर हाउस में जश्न का समा। शहर पेशावर के 2000 से जायद खुसूसी बच्चियों के लिए खेल, तफरीह और ज़हराने का एहतमाम किया गया। जब तक गवर्नर हूँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले रखूंगा। बेसहारा बच्चों के चेहरे खुशी से खिले देखकर सुकून मिलता है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यतीम और बेसहारा बच्चों और खुसूसी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम किया और करता रहूंगा। सूबे के मुखय्यर हजरात से भी दिल खोल के इनकी मदद करने का कहता हूँ। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि अल्लाह ने जिनको अपने खजानों से नवाज रखा है वो दिल खोल कर मुआशरे के इस तबके को तकसीम करें जो इनकी खुशियों से महरूम है। गवर्नर हाउस में बच्चे बच्चियों के लिए मुनक्किदा इस तकरीब में शहर भर से 2000 से जायद ऐसे बच्चे बच्चियों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मोहम्मद असगर मिर्जा ने की। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, बताइएगा क्या तफसीलात है रैली के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें जो
जो चेयरमैन ओवरसीज कमीशन है मिर्जा मोहम्मद असगर, उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत भी की है। मेरे साथ मौजूद भी है इस वक्त मिर्जा मोहम्मद असगर, हम उनसे मजीद जानते हैं। जी मिर्जा साहब बताइएगा, बड़ी शानदार रैली निकाली आपने और यहाँ पर शहरियों को बताया कि मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई और लाकानूनी बढ़ रही है, मजीद क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है कि हर बंदे को अवेयरनेस दें, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इन्होंने महंगाई की है, इसके खिलाफ। और जब तक ये मसलत हुआ है ये टोला हमारे ऊपर, ये जब तक नहीं, जब इसको नहीं भगाएंगे, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी इसको भगाने के बाद। क्या समझते हैं कि ये जल्द भाग जाएंगे? इंशाल्लाह ये जल्द भागेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना मिर्जा मोहम्मद असगर का ये कहना है। बहावलपुर में आज पोलियो मुहिम का आखिरी दिन 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल जवेद खान से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद है। जी फजल, आगाह कीजिएगा। 16 जनवरी से शुरू होने पोलियो मुहिम के बारे में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अराइन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में हमारा जो टारगेट था 8,07,905 बच्चे थे, तो हमने घर घर 3 दिन जो काम किया 16, 17, 18 को 7,99,717 बच्चे हमें मिले हैं। तो जो घर में बच्चे मौजूद नहीं थे वो 47,960 बच्चे थे, उनको टीमों ने नोट किया था NA। तो उनको कल हमारा पहला कैचअप दिन था, तो उसमें उन्होंने 24,578 बच्चों को कतरे पिला दिए थे। तो बाकी जो बच्चे 20,311 बच्चे घर में मौजूद नहीं थे, उनको आज सुबह से हमारी टीमें घर घर जाके कवर कर रही हैं। तो हमने 99% बच्चों को कवर कर लिया और ये जो आज हमारे 20,311 बच्चे रहते हैं, इनको इंशाल्लाह टीमें कवर कर लेंगी जो बच्चे होंगे घर पे मौजूद। इसके अलावा जो गेस्ट होंगे या न्यू बॉर्न होंगे उनको भी कवर करेंगी। लोगों से, बहावलपुर की पब्लिक से मेरी इल्तमास है कि हमारी टीमों से ताउन करें, जब भी टीम आए तो अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, क्योंकि ये 2 कतरे उनको माजूरी से बचाएंगी, हमेशा की माजूरी से बचाएंगी। हमारी जो टीमें घर घर जा रही हैं वो 3,168 टीमें हैं जो घर घर जा रही हैं, और उनमें से हमारी जो 136 हैं वो ट्रांजिट टीमें हैं और 195 हमारी फिक्स साइट पे बैठी हैं टीमें जो सेंटरों पे बैठी हैं। हमारी 120 यूनियन कौंसिल। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। DIG अफजाल अहमद कोसर की हिदायत और SP सिटी ऑपरेशन सरफराज विर्क के हुक्म पर रंग महल पुलिस ने वर्दियों में मलबूस जाली SP और DSP को यूनिफॉर्म समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान ने सोशल मीडिया पर पैसे लेकर भर्ती करवाने की वीडियो भी वायरल की थी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रंगमहल पुलिस ने 3 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाकायदा तौर पर जैली जो है वो IG पंजाब, SSP लाहौर, इसके अलावा DSP की वर्दी पहन रखी थी, जिसका टास्क जो है वो SP सिटी की जानिब से SHO रंगमहल को दिया गया था। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर का जो है वो एक्शन लिया था और कहा था कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। 3 मुलजिम यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जब मुलजमान से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हम एक्टिंग करते हैं और वर्दी का इस्तेमाल जो है वो एक्टिंग के तौर पे कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है उससे पुलिस की वर्दी की काफी बदनामी हुई है, क्योंकि उसमें बड़ा वाजे कहा जा रहा था कि जो है वो 50,000 रुपए मुझे दो, मैं आपको DSP की वर्दी देता हूँ और आपको पोस्टिंग भी लेके दूंगा। जिस तरह 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। SP सिटी की जानिब से कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर खबर जो गर्दिश कर रही थी उसका नोटिस लेते हुए CCP लाहौर ने टास्क दिया था और 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और वर्दी बरामद करने के लिए जो है वो आज रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। जी वसीम, ये भी बताइएगा कि ये अफराद और किस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं इसके अलावा? देखिए, ये जब मेरी मुलजमान से मुलाकात हुई, मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि हम लोग छोटे छोटे टिकटॉकर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की जो यूनिफॉर्म होती है इतने बड़े रैंक की, जिस तरह से IG का रैंक था, SSP का रैंक था, DSP का रैंक था, ये किसी भी दहशतगर्दी में जो है वो इस्तेमाल भी हो सकता था, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो बड़ी साफ सुथरी और बड़े रैंक की ये यूनिफॉर्म। आपने बताया कि वर्दी का जो है वो बहुत एहतराम किया जाता है, पुलिस की वर्दी जो है वो काबिल एहतराम होती है, तो क्या कोई भी किसी भी जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकता है? इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ना।
जी बिल्कुल, ये बुरा असर तो पड़ेगा। जाहिर बात है, जो लोग इस यूनिफॉर्म को देख रहे थे वो पुलिस की बड़ी तजलील कर रहे थे कि देखें शायद ये महकमा पुलिस के असल जो है वो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है। लेकिन आज जब मेरी बात हुई, मुल्जमान से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के शहरियों से माजरत भी की और महकमा पुलिस से भी जो है वो माजरत की। जिस तरह से मैंने बताया कि यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जी बिल्कुल वसीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार, रजिस्ट्रेशन ना रूट परमिट और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान। आपको बताएं कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार हो गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना रूट परमिट। आपको बताएं कि सरकारी खजाने को इस हवाले से करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा है। जी बिल्कुल, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार है, रजिस्ट्रेशन ना रूट परमिट और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकारी खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान है। इन गैर कानूनी जो है वो अमले पर क्यों अमल दरामद किया जा रहा है, एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार है, रजिस्ट्रेशन ना रूट परमिट और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है। इन गैर कानूनी रिक्शों के बारे में मजीद बात करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम राजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इन हवाले से आपके पास। जी आसिम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। इस हवाले से आपको आसिम भी आगाह करेंगे और एक बार हम भी आपको आगाह करें कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार, रजिस्ट्रेशन ना रूट परमिट और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान होने लगा। आपको बताएं कि लाहौर में गैर कानूनी लोडर रिक्शों की भरमार हो गई है। जी बिल्कुल, इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। लोडर रक्षों ने सड़कों पर खौफ फैला रखा है। जहां लोडर रक्षे ट्रैफिक के बहाव में खलल डालते हैं, वहीं पर ट्रैफिक हादसा का बाइस भी बनते हैं। इन गैर कानूनी लोडर रक्षों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बताता चलूं कि लोडर रक्षों को अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्टर तक नहीं किया गया। ना तो इनके पास रजिस्ट्रेशन है, ना ही इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट और ना ही रूट परमिट। ये बगैर रजिस्ट्रेशन वाले लोडर रक्षे गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं। इसी वजह से ये हादसा इसका बाइस भी बन रहे हैं। लोडर रक्षों में इनकी कैपेसिटी से ज्यादा सामान लोड किया जाता है, जो रक्षे की बॉडी से भी बाहर निकला होता है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब इनको एक्साइज डिपार्टमेंट रजिस्टर नहीं करता तो सड़कों पर चलने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल आसिम राजा, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ताउन से शहरियों की आसानी के लिए इस्लामपुरा मेन बाजार में ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के वैन के जरिए शहरियों और ताजर बरादरी की एक बड़ी तादाद ने लाइसेंस रेवेन्यू करवाने के साथ साथ अपने लर्निंग लाइसेंस भी बनवाए। इस मौका पर CEO फाउंडेशन सईद जैदी शाह ने CTO लाहौर डॉक्टर असद मलही का शहरियों को सहूलत फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर राना इंतजार हुसैन के वफ्द के हमरा CCPO लाहौर से मुलाकात। CCPO का कहना था कि मजलूम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में बेंच बार और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले अहम तरीन खबर है लाहौर बार एसोसिएशन से। लाहौर बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर राना इंतजार हुसैन की वफ्द के हमरा CCPO लाहौर से मुलाकात हुई है। CCPO का कहना था कि मजलूम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में बेंच बार और पुलिस का चोली दामन का साथ है। मुलाकात की मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आजम भट्ट से। जी आजम, बताइएगा मुलाकात की तफसीलात क्या है आपके पास। बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना की वकला बरादरी के हमरा कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर आमद हुई, जहां पर CCPO और गुलाम महमूद डोगर से इनकी मुलाकात हुई। सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार समेत नायब सदर आसफ मीन गुराया, सदर नायब सदर सीनियर नायब सदर नदीम अंजम, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर मॉडल टाउन समेत कैंट के नायब सदर भी मौजूद थे। और वकला बरादरी की जानिब से जो सोशल मीडिया पर दौरान इलेक्शन इंतखाबात के दौरान मामला था और वो भी घेरे बहस आया, उसके साथ जदीद गेट पर
جو روڈ بلاک کیا تھا وہ بھی معاملہ جو ہے بحث آیا. اس موقع پر سیسیپل غلام محمود ڈوگر نے کابینہ منتخب بننے پر مبارکباد دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیسیپل لاہور نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے میں بینچ اور باہر پولیس کا جو ہے پولیس دامن کے ساتھ ہے. صدر بار ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ بھی لاہور پنجاب پولیس کی جانب سے قائم کرنے پر جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا. اور جی بالکل اعظم، یہ بتائے گا کہ ملاقات میں اور کن امور پر لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے؟ اعظم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، لیکن لگتا ہے اعظم سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. آپ کو بتائیں لاہور بار ایسوسی ایشن کا جو ہے اس وقت ملاقات جاری ہے اور ملاقات میں بہت سارے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا. اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان، سینیٹر شبلی فراز، راجہ بشارت، ہاشم جواب بخت اور میاں اسلم اقبال شریک ہوئے. اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے حوالے سے مشاورت اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ کے لیے قائم کمیٹی نے اپوزیشن کے عدم تعاون کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کو آگاہ کیا. اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. اپوزیشن نے ایک بار پھر نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے حوالے سے معاملات کو متنازع بنا دیا ہے. اپوزیشن کا یہ رویہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپختگی کے مترادف ہے. پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. ہم نے کھلے دل سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے بہترین شخصیات کے نام دیے. قوم دیکھ رہی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کے معاملے کو بلا وجہ کون تول دے رہا ہے. ہماری کمیٹی کے ممبران راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال اور ہاشم جواں بخت سینئر سیاستدان ہیں اور سنجیدگی سے مذاکرات چاہتے ہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے ہمارے اچھے رویے کے باوجود منفی طرز عمل اپنایا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. جدید سکین مشینوں کی مدد سے دودھ کو چیک کیا گیا. مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایات پر ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. صوبائی دارالحکومت میں داخل ہونے والی دودھ برادر گاڑیوں کی 6 داخلی راستوں پر چیکنگ کی گئی. 2,23,840 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی. 1,080 لیٹر ملاوٹی دودھ ناقص دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا. 171 دودھ برادر گاڑیوں کی چیکنگ. 13 گاڑیوں میں موجود ملاوٹی دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا. گجو متا، اڈا پلاٹ اور بابو صابو سے داخل ہونے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا. راوی پول، سگیاں پول اور سندر ملتان روڈ پوائنٹ پر بھی دودھ گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی. جدید لیکٹو سیکشن مشینوں کی مدد سے موقع پر ٹیسٹ کے دوران پانی، پاؤڈر اور یوریا کی ملاوٹ پائی گئی. شہر بھر میں دودھ کی سپلائی کے لیے آنے والی گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ جاری رہے گی. ڈی جی فوڈ مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے عوام تک پہنچنے والی خوراک کے معیار میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی. ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کا دودھ ضائع. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا ام نصرت فاؤنڈیشن لاہور کا دورہ. بچوں کی فلاح و بہبود اور علاج معالجے میں تعاون کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ام نصرت فاؤنڈیشن کے مابین MOU سائن کیا گیا. چیئرپرسن سارا احمد کا کہنا تھا کہ بے سہارا اور لاوارث بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ام نصرت فاؤنڈیشن مل کر کام کریں گے. چیئرپرسن چائلڈ بیورو سارا احمد اور سینئر وائس چیئرمین ام نصرت فاؤنڈیشن خالد اعجاز مفتی نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی. اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. کی انویٹیشن پہ آئی ہوں. ہم نے یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اور ام نصرت فاؤنڈیشن نے ایک MOU سائن کیا ہے اور یہ بہت زبردست یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسپیشلی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے، تھیلیسیمیا کے جو شکار بچے ہیں ان کے لیے. اور میں نے پورا انہوں نے مجھے وارڈ کا وزٹ کرایا ہے. بہت اچھی طریقے سے مینج کر رہے ہیں بچوں کو اور فری آف کاسٹ سب کو بلڈ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. ان کا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی، ان اقدامات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بچوں کے تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جو ویک ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیماری کا جن کو سامنا ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ جو اپریشیٹ کروں گی جو یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے MOU سائن کیا جس کے تحت ان کے پاس جو بھی چھوٹے بچے آئیں گے جو لاوارث ہوں گے یا جو گمشدہ بچے، کیونکہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں، یہ ان کو ایز اے ریفرل سسٹم چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو ریفر کریں گے اور ہم ان بچوں کی کسٹڈی لے کے ان کو وہاں پہ اپنے پاس رکھیں گے. ان کی ریبلیٹیشن، ان کی ایجوکیشن، جس طرح چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کام کرتا ہے وہ وہاں پہ کیا جائے گا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ
हुकूमत पंजाब के साथ जो MOU साइन किया है, इसके तहत एक तो ये है कि इनके पास भी जो थैलेसीमिया के, ये हेमोफीलिया के या कोई ब्लड कैंसर के बच्चे आएंगे तो ये इन्हें हमारे पास रेफर करेंगे। हम उनका यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं, कोई दवाई का पैसा नहीं होता, कोई ब्लड का पैसा नहीं होता, कोई ब्लड, हर चीज़ उनको आने जाने का खर्चा भी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने अल्लाह ताला ने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि हम उन्हें वो देते हैं। और अब इनसे जो हमने MOU साइन किया है, उसके बाद अगर कोई बच्चा हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भिखारी बच्चे को या यहाँ पे कुछ किसी ने अगवा किया, यहाँ पे जबर से भीख मंगवा रहा है, तो वो वक्त हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि शाह आलम मार्केट की ताजिर बरादरी इंपोर्ट कागजात की क्लियरेंस ना देने पर बैंकों के खिलाफ सरापा एहतराज बन गई। मामला है क्या, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर किश्वर लोधी शाह आलम मार्केट में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी किश्वर, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज़ से ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है। डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से बैंक्स, जितने कमर्शियल बैंक हैं, वो इंपोर्टर्स को उनके बिल ऑफ एंट्री जो है वो नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन इसमें ताजर बिरादरी का क्या कसूर है कि उनको डैमरेज पड़ती जा रही है। और जिस बंदे को $5000 की डैमरेज थी, अब वो तकरीबन $10,000 के करीब पहुंच गई है। हुकूमत ताजर बिरादरी के साथ क्या करना चाह रही है? ताजर बिरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ताजरों के मसाइल की आवाज़ बना। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में अगर डॉलर की शॉर्टेज है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तमाम इंपोर्टर्स ने, तमाम कारोबारी लोगों ने बैंक्स को एफिडेविट दे दिए हैं कि हम 365 दिन तक पैसे क्लेम नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे डेफर्ड पेमेंट लिखा हुआ है। और हमने ये भी इन राइटिंग दिया कि अगर 365 डेज़ के बाद भी गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं हुए तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज अगर हमारी गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है तो हम इनसे आज तो डॉलर मांग ही नहीं रहे। इन्होंने हमसे पहले ये शर्त रख दी है कि जिसकी इनवाइस 365 डेज होगी हम उसको BL रिलीज करेंगे। आज इन्होंने सिर्फ BL देना है, लेकिन आज ही हमें कह कर इस बात का रोना रो रहे हैं जी डॉलर्स नहीं है। तो डॉलर्स तो हम का ये हमें शॉर्टेज की स्टोरी तब सुनाए जिस वक्त डॉलर हम क्लेम कर रहे हो। हम तो इनसे क्लेम ही नहीं कर रहे, हमने तो इन्हें राइटिंग दे दिया है कि आप चाहे 1 साल के बाद भी हमारी TT ना लगाएं। हम हमेशा, कोई रिटायर होता है CSP ऑफिसर, हम उसको दोबारा कोई ओहदा दे के बिठा देते हैं, पहले ही उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया होता है। बिल्कुल सर। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की पॉकेट पे बोझ डालना चाह रही है, शिपमेंट कंपनी का भी, ताकि आप लोगों से पैसे ज्यादा वसूल किए जाएं तो उनको भी जो है ना वो पे किए जाएं? क्या ख्याल है? देखिए जी, लगता तो ऐसे ही है कि जैसे ये शिपिंग कंपनी के साथ मिले हुए हैं। देखें ना, $5000 की इनवॉइस है, $4000 की इनवॉइस है, और जो डैमेज बन चुके हैं वो तकरीबन $10,000 बन चुके हैं इस टाइम। ठीक है, उसके बाद ये अपनी एक पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं कि जी ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। देखें, जब बंदा मार रहा होता है ना, तो मज़हब में भी हमारे है कि जो चीज़ें हराम होती हैं वो हलाल हो जाती हैं। तो ये अपने कानून के ऊपर बैठे हुए हैं। भी ये 365 दिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो लोगों के BL हैं वो दें, आगे लोग जो है ना वो माल नहीं लगवा रहे। जो जनवरी के BL हैं वो लोगों को दे के लोगों को आप रिलैक्स करें और वो डैमेज से बच सकें और नुकसान से बच सकें। हमारा यही है कि बस एक ही है कि जनाब, जब वो बंदा मार रहा होता है, मरते मरते ना, जो हमारा मज़हब भी कह रहा है कि जो चीज़ें हराम होती हैं वो हलाल हो जाती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ताजर बिरादरी का यही कहना है कि हमारे जो पहले जो आज से 4-4 माह पुराने BLs हैं उन्हीं को क्लियर कर दें तो हम इनके थैंकफुल होंगे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ताजर बिरादरी को ये समझते हैं कि ये मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं तो यकीनन इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जी, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और मुसल्लह गाड़ियों की सूरत में मजीद $2.5 अरब की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत दिफा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए 59 ब्रॉडली फाइटिंग व्हीकल्स और 90 स्ट्राइकर आर्मेंट पर्सनल कैरियर्स फराहम की जाएंगी। अमरीकी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता बरस फरवरी में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक अमरीका की जानिब से यूक्रेन को फौजी इमदाद की मद में
27.4 अरब डॉलर्स इमदाद दी गई है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।